to all the students. As yesterday we have discussed about the application of Avogadro's law, and the only one application we are able to discuss in the yesterday topic. So today we are again start the topic with the second application of the Avogadro's law. So second application of Avogadro is determination of relationship between the vapor density and the molar mass of a gas. So what is vapor density? Vapor density is the ratio of mass of a certain volume of a gas upon mass of a same volume of hydrogen molecule. So at the STP condition, means standard condition of temperature and pressure, the vapor density also we are able to write like mass of a one molecule of gas upon mass of a one molecule of hydrogen atom, because volume will remain same and it will be cancelled out. Then the mass of a one molecule, it is also a ratio of the mass of a one molecule of gas upon mass of a one molecule of hydrogen atom. And we know that hydrogen molecule contain two atoms. So vapor density is also equal to mass of a one molecule of gas upon mass of a two atoms of hydrogen atom, definitely. So but the ratio of mass of one molecule of gas upon mass of an atom of hydrogen, the ratio of mass of a one molecule of gas upon mass of an atom of hydrogen, is this ratio is equal to molar mass. So molar mass, there are two atoms of hydrogen, so molar mass, this ratio is called molar mass upon 2. So अगर हम 2 को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो मोलर मास किसका इक्वल आ गया, 2 into vapor density. Fine. So vapor density is also called relative density of a gas. Is also called relative density of a gas. Fine. So now we discuss our next application of the Avogadro's law. We are going to discuss about the third application. The third application is determination of relationship between mass and the volume of gas. So what is the relationship? So we know that in the second application हमने एक relation derive किया था, molar mass equal to 2 into vapor density, and vapor density क्या था, which is also called relative density, and it is a ratio of mass of a certain volume of a gas at STP condition and the mass of a same volume of a hydrogen gas at STP condition. This ratio is called vapor density. So in terms of a volume हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, mass of a 1 liter of gas upon mass of a 1 liter of hydrogen gas at STP condition, and at this condition the mass of a 1 liter of hydrogen gas is 0.089 gram. So molar mass equal to 2 into mass of a 1 liter of gas upon 0.089 gram. So molar mass equal to 2 upon 0.089 multiply mass of a 1 liter of gas. When we divide these terms, then we find out 22.4 liter हमारी यहाँ गैस निकल रही है. तो मोलर मास किसके इक्वल आ गया, 22.4 liter gas of 22.4 liter of mass of a 1 liter of any gas. So this is the relationship between the molar mass and the volume of gas. Fine. So हमने 3 application के बारे में discuss किया. First application is atomicity, second application is the relationship between the vapor density and molar mass, and the third application is relationship between the molar mass and the volume. So these are our three application of the Avogadro's law. In the last lecture, I think we have already studied about the atoms and molecules. And atoms and molecules, what is atom and molecule? Atom and molecule are the atom. अगर हम बात करें atoms की, तो atoms are the smallest particle and it is a part of a matter. You know that. And what is matter? Matter is anything which occupies space and has mass. फाइन. सो अल्टीमेटली मैं बात करूं, अगर मैंने एटम की बात कर ली है तो मुझे एटॉमिक मास की बात भी करनी पड़ेगी. तो एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पूरे कंसेप्ट के अंदर आपको 2 टॉपिक अच्छे से रीड आउट करने हैं. एटॉमिक मास टॉपिक के अंदर एटॉमिक मास टॉपिक कहाँ से निकल के आता है वो मैंने आपको बता दिया.
हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, और एटम और मॉलिक्यूल क्या है, एक टाइप के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर के, और मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। सो अल्टीमेटली एटम का भी हमें मास पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास के अंदर आपको दो टॉपिक आपको रीड आउट करने होंगे, एक तो ग्राम एटॉमिक मास और एक एवरेज एटॉमिक मास। लेकिन बिफोर स्टडी दीज टू टॉपिक, फर्स्टली वी नो अबाउट द व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता क्या है, और एटॉमिक मास को फाइंड आउट करना नॉट इजी टास्क। सो एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक हाइड्रोजन एटम कैरी किया गया था, और हाइड्रोजन एटम को बाय इनडायरेक्ट मेथड इसका मास कैलकुलेट किया गया था, और वो मास कितना था, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और दिस वैल्यू इज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द कैलकुलेशन। ये वैल्यू करेक्ट नहीं थी फॉर ए कैलकुलेशन बिकॉज इट इज ए वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो हाइड्रोजन की इस वैल्यू को रिलेटिव मास बोला गया था, ठीक है, क्योंकि इसको एटॉमिक मास टर्म नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये कैलकुलेशन के लिए बहुत ही इनकन्वीनियंट वैल्यू थी, ठीक है। सो इस रिलेटिव मास को कैलकुलेट करने के लिए, मान लो सपोज अगर इसी तरीके से मुझे हाइड्रोजन की तरह किसी और का भी अगर मास कैलकुलेट करना है, तो मुझे हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या लेकर चलना पड़ेगा, इसे मुझे स्टैंडर्ड मास मान के चलना पड़ेगा। हाइड्रोजन की हेल्प से, हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड मास मानकर हम किसी भी अदर एटम का रिलेटिव मास क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन। सो इसको स्टैंडर्ड मास मान के चले सबसे पहले साइंटिस्ट, तो क्या माना गया, जो हाइड्रोजन था क्या कैलकुलेट किया गया, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर देन द वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। जब ऐसा कंसीडर किया गया कि हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मास मानकर बाकी एटम्स के रिलेटिव मास कैलकुलेट कर लिए जाएंगे, तो एटॉमिक मास टर्म तो बहुत बाद में आई है, क्योंकि एटॉमिक मास के लिए हमें करेक्ट मास की वैल्यूज चाहिए होती हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले रिलेटिव मासेस निकालने पड़ेंगे, और रिलेटिव मास को निकालने के लिए मुझे पहले कोई रेफरेंस मास लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मास लेना पड़ेगा। और वो स्टैंडर्ड मास सबसे पहले क्या लिया गया, हाइड्रोजन का लिया गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अभी आपको क्या बताया, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एट एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर देन द वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो जो बाकी मासेस थे उनका मास काफी टाइम्स हैवियर निकला एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम से। सो इस टर्म को नेग्लिजिबल कंसीडर कर लिया गया। फिर स्टैंडर्ड में या इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन या सुटेबल फिट नहीं हुआ दूसरे मासेस का, दूसरे उसका रिलेटिव मास, दूसरे एटम्स के रिलेटिव मास को कैलकुलेट करने के लिए। फिर यहाँ पर आया ऑक्सीजन को लिया गया। ऑक्सीजन को, बिकॉज ऑक्सीजन इज ऑल्सो वेरी रिएक्टिव कंपाउंड, सो ऑक्सीजन का भी यही कंडीशन निकल के आई, जो एटॉमिक मास था ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन atom of a number of times is heavier than the atom of a hydrogen atom. So in this condition also क्या हुआ, in the number of time heavier than the हाइड्रोजन एटम। सो यही कंडीशन हुआ, हाइड्रोजन को भी एक बार हमने रिलेटिव मास मान के चले हैं, वो स्टैंडर्ड मास मान के चले हैं, हाइड्रोजन को भी स्टैंडर्ड मास मान के चला, बट यहाँ पर हमारे रिलेटिव मासेस अदर एटम्स के कैलकुलेट नहीं हो पाए। फिर माना गया कार्बन का। इन 1961 कार्बन का जो 12 आइसोटोप है, इसे स्टैंडर्ड मास मानकर रिलेटिव मासेस कैलकुलेट करके देखे गए, और वो कैलकुलेट भी इजिली हो गए, ठीक है। जब वो कैलकुलेट हो गए इन ए परफेक्ट टर्म, तब उसे बोला गया एटॉमिक मास, तब उस डेफिनेशन का नाम दिया गया था एटॉमिक मास। सो ये पूरी पीछे से ही स्टडी चली आ रही है स्टूडेंट्स। हमने एटम्स पढ़े, हमने मॉलिक्यूल्स पढ़े। एटम्स और मॉलिक्यूल्स मैटर का पार्ट है, मैटर का मास होता है, तो हमने एटम के लिए एटॉमिक मासेस पढ़ने हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर मासेस पढ़ने हैं। तो एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किए गए, वो कोई इजी टास्क नहीं था कैलकुलेट करना। उनको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो रेफरेंस एटम लिया गया कैलकुलेट करने के लिए, वो हाइड्रोजन कैरी किया गया, स्मॉलेस्ट और हाईली रिएक्टिव। देन ऑक्सीजन कैरी किया गया, और लास्ट में जब कार्बन का जो आइसोटोप 12 है, उसकी हेल्प से हमने अदर एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट किया। फाइन। सो in atomic mass. So atomic mass is the average relative mass. It is a relative mass of an atom of an element compared with the mass of an atom of carbon, which is taken as 12. Isotope is 12, and so atomic mass is a ratio of mass of an atom with the 1/12 of the mass of a carbon. So in this way we are able to calculate the atomic mass of a other atoms. सो एटॉमिक मास को जो मेजर किया जाता है वो एक स्केल में मेजर किया जाता है। दैट स्केल इज कॉल्ड AMU, एटॉमिक मास यूनिट, द स्केल ऑफ ए रिलेटिव मासेस।
Fine. So what is AMU? It is a quantity of mass equal to the 1/12 of the mass of an atom of carbon 12. Fine. So 1 AMU की जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आती है 1.066056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और जब हम हाइड्रोजन एटम का जो मास था हमारा रिलेटिव मास था, जब हम उसको एएमयू की वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन का एक्चुअल एटॉमिक मास निकल के आता है, दैट इज 1.008 एएमयू। और हम इसको और कैसे लिख सकते हैं 1.008 म्यू, इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। और अगर मैं इसी बात को एटॉमिक मास को ही, एटॉमिक मास की टर्म को ही मैं GAM की फॉर्म में तुम्हें आपको पढ़ाऊं तो ये है ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर हाइड्रोजन का जो मास है वो 1.008 AMU लिखा जाए और इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राम, अगर मैं बात करूं ग्राम की टर्म में, ग्राम एटॉमिक मास किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है 1.008 ग्राम। तो किसी भी एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। सो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है 1.008 ग्राम। फाइन। Now study the concept of average atomic mass. How will we calculate average atomic mass? Suppose we have two isotopes of chlorine. अगर हमारे पास दो आइसोटॉप है क्लोरीन की, one isotope of chlorine 35 and other isotope of chlorine 37 in the ratio of 3:1. They are present in the ratio 3:1. Then how we calculate the average atomic mass of chlorine? So in this condition we use a formula m into A plus n into B upon m plus n. This is the formula. Here m represent the mass of a chlorine isotope 1, n represent the mass of a chlorine isotope 2, A represent the ratio of first isotope, B represent the ratio of second isotope. So formula is m into A plus n into B upon m plus n. So after putting the value, we calculate the average atomic mass of chlorine is 35.5 mu, a atomic mass unit, and in the form of a gram atomic mass we write 35.5 gram. Fine. So students, आज के लिए इतना ही. Tomorrow we will start our topic with the molecular mass. Fine.